Good morning everyone. My name is Ankush Yadav. I am studying Sri KJ Polytechnic Bharuch. Practical number 12. Identification part of various circuit breaker. Introduction. A circuit breaker is an electric device used to protect electric circuit from damage cases by overcurrent or short circuit. It automatically interrupts the flow of current when a fault is detected. When fault occurs in circuit breaker, relations it and send a signal of circuit breaker. Now the trip coil of circuit breaker will get energized and the moving contact are pulled apart and open the circuit. Due to the large faulty current and arc in struck between the fixed and moving contact. Conjunction. A circuit breaker consists of two contact, fixed contact and moving contact. Working under normal condition, the fixed and moving contact are connected together, always current to flow through the circuit. During faulty condition, when the fault current occurs, the moving contact is separate from the fixed contact. This interpretation stops the current flow and protect the connected. नॉर्मल कंडीशन में फिक्स कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट दोनों जुड़े हुए रहते हैं, जिसमें से आराम से करंट फ्लो हो जाता है. टर्निंग फॉल्टिंग कंडीशन, फॉल्टिंग कनेक्शन में शॉर्ट सर्किट या ओवरहीट होता है तो फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट दोनों सेपरेट हो जाते हैं और करंट फ्लो होना बंद हो जाता है. टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर. फर्स्ट, ऑल सर्किट ब्रेकर में दो टाइप होते हैं. ए बुल ऑयल सर्किट ब्रेकर, बी मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, सेकेंड एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, थर्ड सर्पर हेक्साफोराइड सर्किट ब्रेकर शॉर्ट फॉर्म SF6, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर. सबसे पहले हम बुल ऑयल सर्किट ब्रेकर समझेंगे. इन दिस टाइप ऑफ breaker oil is used in both in isolation and arc extension medium. When the contact separate inside the oil and arc produce, the surrounding oil cool and extension the arc rapidly due to the decomposition and gas information with the tank. बुल ऑयल एक ऐसा सर्किट ब्रेकर है जिसमें तेल का इस्तेमाल किया जाता है आइसोलेशन और आर्क को बुझाने के लिए. उसमें पार्ट्स यूज होते हैं टैंक, कॉन्टैक्ट, आर्क कंट्रोल डिवाइस, बुशिंग, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म. इसका वर्किंग प्रिंसिपल है. ए सर्किट ब्रेकर हैज फिक्स एंड मूविंग कॉन्टैक्ट. इन नॉर्मल ऑन पोजिशन बोथ कॉन्टैक्ट टच अदर करंट टू फ्लो. व्हेन द फॉल्ट ऑसर मैकेनिज्म एनर्जी वर्किंग. जब फॉल्ट आए तो उसमें ओवरलोड होता है तो ब्रेकर का कॉन्टैक्ट अलग हो जाता है जिससे करंट फ्लो होना बंद हो जाता है. उस समय आर्क बनती है. आर्क की गर्मी से तेल इवापोरेट होकर हाइड्रो गैस बनता है. यह गैस आर्क को ठंडा करके बुझा देती है. इसमें सर्किट टूट जाता है और बिजली का बहाव रुक जाता है. In bulk oil circuit breaker, oil perform two main functions. It act an arc extension medium. It provide insulation between live part and earth. इसका एडवांटेज है oil act both an arc quenching and insulating medium. Effective cooling. Oil has good cooling property. It help to cool the arc contact. Third, low installation cost. The installation cost is lower compared to SF6 or vacuum circuit breaker. High dielectric, fresh oil after current zero, provide good dielectricity and prevent flashover between contact. Disadvantage, explosive gas. Explosive gas is produced when the oil decomposes during the arcing. Slow operation. It operates slower than modern circuit breaker like SFC or vacuum type. Third, bulk and heavy, require more space and strong foundation due to the heavy oil tank. Carbonization. Carbon is produced due to the oil decomposition which reduce the dielectricity and regularly testing, filtering and replacement of oil are necessary. अब हम मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में समझेंगे. मिनिमम ऑयल सर्किट वह सर्किट ब्रेकर है जिसमें बहुत कम मात्रा में तेल का इस्तेमाल किया जाता है. यह तेल सिर्फ आर्क
बुझाने के लिए उपयोग होता है, ना कि आइसोलेशन। इसमें पार्ट्स यूज होते हैं: आर्क चैम्बर, ऑयल, कॉन्टैक्ट, बुशिंग, टैंक। वर्किंग प्रिंसिपल है इसका: जब कोई फॉल्ट होता है तो ब्रेकर के कॉन्टैक्ट अलग हो जाते हैं, उनके बीच आर्क बनती है। आर्क की गर्मी से तेल भाप बनकर हाइड्रोजन बनता है। यह गैस आर्क को ठंडा कर बुझा देती है। उसमें करंट का बहाव रुक जाता है और सर्किट सुरक्षित हो जाती है। 2 टाइप्स ऑफ टैंक: लाइव टैंक, डेड टैंक। लाइव टैंक डेड हाई वोल्टेज जुड़ा होता है। डेड टैंक में अर्थिंग जुड़ा होता है और अंदर केवल आर्क चैम्बर हाई वोल्टेज पर होता है। एडवांटेज: कम तेल लगता है और आग को खतरा कम होता है। आकार में छोटा होता है, सुरक्षित अधिक है, तेल के बदलने की ज़रूरत कम होती है। इसका योग वोल्टेज 32 kV टू 132 kV तक उपयोग के होता है। नुकसान: ज़्यादा जलती है, रिपेयरिंग करने में कम टाइम लगता है, तेल का स्तर ध्यान से बनाए रखना पड़ता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इंट्रोडक्शन: यूज्ड टू कंप्रेस एयर एज द आर्क क्विचिंग मीडियम। Air is stored in a reversion and released during the operation of extinguish the arc. The blast of air cool and remove ionized gas. Working: during the operation, compressed air is released through the nozzle at the contact. The air blast blow away the arc and sweeps out ionized practice electric. एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में यह एक ऐसा सर्किट ब्रेकर है जिसमें हवा कंप्रेस्ड एयर का उपयोग किया जाता है आग को बुझाने के लिए, ना कि इसमें तेल का उपयोग किया जाता है। इसके मेन पार्ट्स होते हैं: कंप्रेस्ड एयर टैंक, नोजल, कॉन्टैक्ट, आर्क चैम्बर, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। इसका वर्किंग प्रिंसिपल है: जब फॉल्ट होता है तो ब्रेकर का कॉन्टैक्ट अलग हो जाता है, उनके बीच आर्क चिंगारी बनती है। उस समय कंप्रेस हवा का नोजल से तेज़ हवा आर्क पर फेंकी जाती है। यह हवा आर्क को ठंडा कर देती है और आर्क को ख़त्म कर देती है। सर्किट सुरक्षा रूप से टूट जाती है। टाइप्स ऑफ एयर सर्किट ब्रेकर: एक्सेल ब्लास्ट टाइप, रेडियल ब्लास्ट टाइप, क्रॉस ब्लास्ट टाइप। एडवांटेज: तेज काम करता है, तेल का ज़रूरी नहीं है, मेंटेनेंस कम होता है, हाई वोल्टेज पे काम करता है 132 kV से ज़्यादा, बार बार इस्तेमाल करने का योग्य। डिसएडवांटेज: हवा के लिए कंप्रेशन सर्किट का ज़रूरी होता है। नॉइज़ ज़्यादा होता है तो शोर नॉइज़ ज़्यादा होता है जब हवा छोड़ी जाती है। एयर प्रेशर सिस्टम महंगा होता है। अब सल्फर हाई फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर SF6। वर्किंग प्रिंसिपल: इन SF6 सर्किट ब्रेकर, SF6 is gas is used as an arc quenching medium. SF6 circuit breaker have been found to be very effective for high power and high voltage service. Various type of circuit breaker SF6 are designed by various manufacturing from 3.6 to 760 kV. SF6 gas is electronic negative gas and has a high adhesive and error-free electronic. SF6 plus E minus SF6 plus E SF5 plus 4. The negative ion are heavier as compared to the free electron, and they do not get sufficient energy to lead commutative ionization in the gas under the give electric field. This property gives rise to very high dielectric strength of SF6. Advantage: no risk of fire as the gas is non-inflammable. There are non-carbon deposits so that insulation problems are eliminated. Minimum maintenance coverage, noiseless operating, very short arcing time, no moisture dust problem.
Vacuum circuit breaker conjunction. Contact are enclosed in the vacuum chamber made of glass or galvanic. The moving contact operate via and metallic flow mechanism. The vacuum provide both arc extension and insulation. Working principle: when contact separate, an arc is formed due to vaporization of contact metal. The arc is quickly extendization and electron and ion are absorbed by the vacuum enveloping walls. Advantage: high dielectric strength of vacuum, no gas or oil decomposition, no maintenance required, comfort and long service life. Application: used in medium voltage 3 kV to 3.3 switch gear system. वैक्यूम सर्किट ब्रेकर वह सर्किट ब्रेकर है जिसमें आर्क और वैक्यूम यानी बिना हवा या गैस वाला वातावरण में बुझाया जाता है। वैक्यूम में कई गैस या द्रव नहीं होता, इसलिए आर्क बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। मेन पार्ट्स: फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट, वैक्यूम चैम्बर, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, इंसुलेशन हाउस। वर्किंग प्रिंसिपल: जब फॉल्ट होता है तो कॉन्टैक्ट अलग हो जाते हैं, उनके बीच आर्क बनती है। चूँकि अंदर वैक्यूम होता है इसलिए वह कोई गैस या हवा नहीं होती है जो आर्क को बनाए रख सके, इसलिए आर्क को बहुत जल्दी बुझा जाती है। सर्किट तुरंत टूट जाती है और सिस्टम सुरक्षित हो जाता है। एडवांटेज: बहुत तेज़ काम करता है, कई तेल या गैस का उपयोग नहीं होता है, मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। लॉन्ग लाइफ, कम आकार और वजन वाला उपकरण है, साइलेंटली वर्क करता है। डिसएडवांटेज: ज़्यादा वोल्टेज में इसका यूज़ कर सकते हैं, 32 kV के लिए होता है। रिपेयर: वैक्यूम की स्थिति समय समय पर जांचित करी है। ये सर्किट ब्रेकर एक ऐसा सर्किट ब्रेकर है जिसको आर्क को बुझाने के लिए नॉर्मल हवा का यूज़ किया जाता है। इसमें कई तेल, गैस या वैक्यूम नहीं होता। आर्क बुझाने के माध्यम: मेन पार्ट्स: फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट, आर्क चार्ट, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, इंसुलेटिंग सपोर्ट। वर्किंग प्रिंसिपल: जब सर्किट में फॉल्ट या ओवरलोड होता है तो ब्रेकर का कॉन्टैक्ट अलग हो जाता है। अलग होते समय आर्क बनती है। आर्क चार्ट हवा के साथ मिलकर आर्क को लंबा और ठंडा करती है। उस प्रक्रिया में आर्क को टुकड़े बन जाते हैं और वह धीरे धीरे बुझ जाती है। सर्किट सुरक्षित रूप में हो जाती है। प्रकार: टाइप्स: प्लेन एयर ब्रेक टाइप, आर्क चार्ट टाइप, मैग्नेटिक ब्लो आउट टाइप। एडवांटेज: तेल या गैस की ज़रूरत नहीं होती, आग लगने का कोई खतरा नहीं, मेंटेनेंस आसान। डिसएडवांटेज: आग ज़्यादा समय तक रहती है, शोर और स्पिन अधिक हो जाती है, खुले में प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि मॉइस्चर के कारण। हम टाइप्स ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर देखेंगे। बुल्क ऑयल टाइप तो हमने देख लिया, अब प्लेन ब्रेक टाइप देखेंगे। प्लेन ब्रेक टाइप: द CB इन्वॉल्व सिंपल प्रोसेस सेपरेटिंग कॉन्टैक्ट अंडर ऑयल टैंक। देयर आर नो स्पेशल सिस्टम फॉर आर्क कंट्रोल अदर द लॉन्गिंग द आर्क। Arc is intake. Hydrogen gas bubble heat convert good to cooling arc. High pressure oil to move and pass by arc. Of arc and arc length slowly more the weak more arc length on dielectric. They using in 11 kV are depend on lengthening of arc, not using high rating. प्लेन ब्रेक टाइप ऑयल सर्किट ब्रेकर एक
ऑयल सर्किट ब्रेकर का प्रकार है जिसमें तेल का उपयोग आर्क को बुझाने और आइसोलेशन दोनों के लिए किया जाता है। मेन पार्ट्स: टैंक, फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट, बुशिंग, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, वर्किंग प्रिंसिपल। जब फॉल्ट होता है तो कॉन्टैक्ट अलग हो जाते हैं, उनके बीच आर्क बनती है। आर्क की गर्मी से तेल वेपर में होकर हाइड्रोजन गैस बन जाता है। यह गैस आर्क को ठंडा करती है और बुझा देती है। जब आर्क बुझ जाता है तो सर्किट सुरक्षित रूप से खुल जाती है। मुख्य विशेषता: इसमें कई आर्क कंट्रोल चैम्बर नहीं होते, इसलिए इसे प्लेन ब्रेक टाइप कहा जाता है। आर्क सीधा तेल से बनती है और वही बुझती है। एडवांटेज: साधारण और समझती, मीडियम वोल्टेज। डिसएडवांटेज: बहुत ज़्यादा तेल लगता है, आग लगने का खतरा रहता है, तेल बार बार बदलना पड़ता है क्योंकि यह खराब हो जाता है, ज़्यादा वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है। हाई वोल्टेज बुझाने की कैपेसिटी उसकी बहुत कम रहती है। डबल ब्रेक टाइप ऑयल सर्किट ब्रेकर। यह एक ब्लू ऑयल सर्किट ब्रेकर का पार्ट है जिसमें हर फेज में दो ब्रेक यानी दो पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं। इसका मतलब है कि जब सर्किट खुला है तो एक ही समय में दो जगह आर्क बनती है और बुझाई जाती है। उससे आर्क जल्दी ख़त्म होती है और ब्रेकर ज़्यादा करंट को काट सकता है। मेन पार्ट्स: ऑयल टैंक, फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, बुशिंग, वर्किंग प्रिंसिपल। जब सर्किट ऑन होता है तो चाल संपर्क मूविंग कॉन्टैक्ट दोनों स्थिर में जुड़ जाते हैं। जब फॉल्ट ओवरलोड होता है तो दोनों कॉन्टैक्ट अलग हो जाते हैं, उससे दो जगह पर आर्क बनती है। यह दोनों आर्क तेल में बनती है और तेल से उठती है हाइड्रोजन गैस उन्हें ठंडा करके बुझा देती है। सर्किट सुरक्षित रूप में हो जाती है। डबल ब्रेक: क्योंकि हर फेज में दो आर्क बनती है और बुझती है, इसलिए करंट को दो भाग में बांटकर तोड़ा जाता है, जिससे आर्क की इंटेंसिटी कम होती है और ब्रेकर ज़्यादा प्रभावी होता है। एडवांटेज: तेज और प्रभावी आर्क को बुझाने की क्षमता। तेल की मात्रा कम लगती है क्योंकि दो ब्रेक है। सिंगल ब्रेक की तुलना में कम वोल्टेज बहता है। डिसएडवांटेज: कॉम्प्लेक्स बड़े सिस्टम में जगह ज़्यादा लेता है। एप्लीकेशन: इसका यूज़ 32 kV से 62 kV तक मध्यम वोल्टेज को किया जाता है। आर्क कंट्रोलर टाइप: सेल्फ ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कर गैस का उपयोग किया जाता है आर्क को बुझाने के लिए। SF6 सल्फ्यूरिक हाइड्रोजन गैस जैसा। सेल्फ ब्लास्ट शब्द का यूज इसलिए किया है, आर्क की गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि उससे गैस बनती है और वो गैस से ही आर्क बुझ जाती है। मेन पार्ट्स: फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट, आर्क चैम्बर, SF6 गैस, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, वर्किंग प्रिंसिपल। जब फॉल्ट होता है तो कॉन्टैक्ट अलग हो जाते हैं, अलग होते समय आर्क बनती है। आर्क की गर्मी FS6 गैस गर्म होकर फैलती है और उच्च दबाव हाई प्रेशर बन लेती है। यह गर्मी गैस तेज़ी से बहकर आर्क को ठंडा और बुझा देती है। जैसे ही आर्क बुझती है, गैस फिर से ठंडी होकर सामान्य दबाव पर लौट जाती है। एडवांटेज: भारी गैस प्रेशर सिस्टम की ज़रूरत, आर्क बहुत जल्दी बुझ जाती है, मेंटेनेंस बहुत कम, साइलेंट ऑपरेशन। डिसएडवांटेज: कॉम्प्लेक्स, कॉस्ट, लॉस। SF6 गैस महंगी होती है और उसका लीकेज होने का ज़्यादा होता है। बहुत
ठंडे मौसम में गैस का दबाव घटाना पड़ता है। एप्लीकेशन इसको वोल्ट 132 kV टू 800 kV में यूज़ किया जाता है सब स्टेशन, पावर स्टेशन और ग्रिड नेटवर्क में, जहां तेज़ ट्रिपिंग और विशेष सुरक्षा चाहिए। आर्क कंट्रोलिंग टाइप का सेकेंड पॉइंट, फोर्स ब्लास्ट टाइप। As the arc itself generating the necessary pressure to force the oil across the arc path in case of cell blast. Oil circuit breaker, it has some limitation like arcing time is long, and when the operating again current conditions be less than the rotated current is because the gas energy is much reduced it low value fault current. The piston cylindrical arrangement in which piston is mechanically coupled with the moving contact. The piston forces a jet of oil toward the contact gap the extends the arc. Advantage performance at low current is more constant. The quantity of oil recovered is reduced. फोर्स ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर एक ऐसा सर्किट ब्रेकर है जिसमें हाई प्रेशर का उपयोग किया जाता है आग को बुझाने के लिए। इसमें गैस SF6 सल्फ़र हाइड्रोक्साइड का प्रकार की गैस यूज़ करी जाती है, इसलिए इसे फोर्स ब्लास्ट कहा जाता है क्योंकि गैस ज़बरदस्ती से आग को फूंक कर बुझाती है। मेन पार्ट, फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट, आर्क चैम्बर, गैस रिवर्सर, नोजल, ऑपरेटिंग गैस। वर्किंग प्रिंसिपल, जब फॉल्ट होता है तो ब्रेकर कॉन्टैक्ट से अलग हो जाते हैं, उनके बीच आर्क बनती है। उस समय गैस टैंक को हाई प्रेशर SF6 गैस को नोजल की जरिए ज़बरदस्ती आर्क को ठंडा जाता है। यह गैस आर्क को ठंडा करती है, आर्क की जगह से आयन हटा देती है। इसमें आग बुझ जाती है और सर्किट सुरक्षित हो जाती है क्योंकि गैस को एक्सटर्नल प्रेशर से आग के साइड भेजा जाता है। यह ब्लास्ट से अलग है क्योंकि इसमें गैस खुद ही बनती है, ब्लूक बाहर से फोर्स लगाकर भेजा जाता है। एडवांटेज, बहुत तेज़ आग बुझाता है, मेंटेनेंस कम होता है, हाई वोल्टेज 132 और ऊपर इसका यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेज, लीकेज होने पर घटना हो सकती है, इसका नॉइस थोड़ा ज़्यादा होता है। सेल ब्लास्ट टाइप के सर्किट ब्रेकर के और प्रकार होते हैं जैसे कि प्लेन एक्सप्लोजन पोर्ट, क्रॉस जैक्ट एक्सप्लोजन पोर्ट, सेल्फ कंपोजिट एक्सप्लोजन पोर्ट। सबसे पहले मैं प्लेन एक्सप्लोजन पोर्ट बताऊंगा। प्लेन एक्सप्लोजन पोर्ट सर्किट ब्रेकर एक प्रकार का ऑयल सर्किट ब्रेकर है। इसमें ऑयल का उपयोग किया जाता है आग को बुझाने के लिए, और आग बुझते समय तेल फटता है एक्सप्लोड, जिससे गैस बनती है और आग को बुझा देते हैं। उसमें कई आग कंट्रोल चैम्बर नहीं होते, इसलिए इसे प्लेन एक्सप्लोजन पोर्ट टाइप कहा जाता है। मेन पार्ट, एक्सप्लोजन पोर्ट, फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट, पुशिंग, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। वर्किंग प्रिंसिपल, जब फॉल्ट होता है तो कॉन्टैक्ट अलग हो जाते हैं, उनके बीच आग बनती है, आग की गर्मी से तेल फटता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। यह गैस आग को ठंडा करके बुझा देती है, सर्किट सुरक्षित रूप से टूट जाती है। मुख्य विशेषता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आग को तेल के एक्सप्लोज से बुझा जाता है, उसमें आग कंट्रोल चैम्बर नहीं होता है, यह प्लेन टाइप का विशेष रूप है। एडवांटेज, सरल और कम लागत वाला डिज़ाइन, तेल और गैस से आग बुझाते हैं समय। इसका उपयोग हाई वोल्टेज अप टू 32 kV के लिए उपयुक्त है। डिसएडवांटेज, तेल
की मात्रा अधिक लगती है, आग लगने का खतरा रहता है। हाई वोल्टेज के लिए अनुभूत है, मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। हाई वोल्टेज 11 kV टू 32 kV सब स्टेशन और इंस्टॉलेशन नेटवर्क। क्रॉस जेट एक्सप्लोज स्पोर्ट सर्किट ब्रेकर एक प्रकार का ऑयल सर्किट ब्रेकर है। इसमें आग को बुझाने के लिए तेल का एक्सप्लोज होता है। आग को बुझाने के लिए क्रॉस जैक का उपयोग होता है। क्रॉस जैक का मतलब है कि तेल से बनने वाले गैस हाइड्रोजन को आग पर क्रॉस दिशा में फेंका जाता है ताकि आग जल्दी और प्रभावी रूप से बुझ जाती है। मेन पार्ट्स: एक्सप्रेशन पोर्ट, फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट, क्रॉस जेट नोजल, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, बुशिंग। वर्किंग प्रिंसिपल: जब फॉल्ट होता है तो कॉन्टैक्ट अलग होता है, आर्क बनती है। आर्क की गर्मी से तेल एक्सप्लोज और हाइड्रोजन गैस बनता है। उस गैस को क्रॉस जेट नोजल से माध्यम से आर्क पर दिशा दिखाई जाती है। गैस बनने पे क्रॉस जैक की नोजल से आर्क की साइड उसे भेजा जाता है। गैस आर्क को ठंडा करता है और आयन का हट और बुझ जाता है। उससे हमारा सर्किट सेफ हो जाता है। आर्क को बुझाने में क्रॉस जेट गैस का उपयोग किया जाता है। आर्क बहुत तेज़ से बुझती है। यह एक्सप्लोज स्पोर्ट सर्किट ब्रेकर है। एडवांटेज: आग बहुत जल्दी और प्रभावी रूप से बुझती है। तेल और गैस से आग बुझाने की क्षमता अधिक कम है। मेंटेनेंस कम होता है इसका यूज़ 11 kV टू 32 kV तक होता है। डिसएडवांटेज: कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तेल और नोजल की सही स्थिति ज़रूरत है। हाई वोल्टेज के लिए के यूज़ किया जाता है और महंगा पड़ता है। तेल और गैस का ध्यान रखना पड़ता है। मध्यम और हाई वोल्टेज 11 kV टू 62 kV सब स्टेशन में इसका यूज़ किया जाता है। इंसुलेशन नेटवर्क: जगह और जहाँ तेज और प्रभावी आग बुझाना जरूरी हो। थर्ड पॉइंट: सेल्फ एक्सप्लोजन पोर्ट सर्किट ब्रेकर एक प्रकार का ऑयल सर्किट ब्रेकर है। इसमें आग को बुझाने के लिए ऑयल खुद ही सेल्फ एक्सप्लोज और गैस बनकर आग को बुझाते हैं। सेल्फ एक्सप्लोज का मतलब है कि आग की गर्मी तेल को इतना गर्म कर देती है कि वह अपने आप फटकर गैस पैदा करती है, जिससे आग को बुझाने में इस्तेमाल किया जाता है। उसमें कई बार मेन पार्ट: एक्सप्लोजन पोर्ट, फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, बुशिंग। वर्किंग प्रिंसिपल: जब फॉल्ट होता है तो कॉन्टैक्ट अलग हो जाते हैं, उनके बीच आग बनती है। आग की गर्मी से तेल खुद फटता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। यह गैस आग को ठंडा और बुझा देती है। जैसे ही आग बुझती है, सर्किट खुद से सेफ हो जाती है। आग बुझने के लिए तेल खुद फटता है, कई बाहरी दबाव की ज़रूरत नहीं है। आग को बुझाने के लिए तेल खुद फटता है, उसको कोई दूसरे फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह प्लेन एक्सप्लोज पोर्ट है और क्रॉस जैक एक्सप्लोजन पोर्ट का यह एक प्लेन एक्सप्लोजन पोर्ट क्रॉस जैक का मिलता जुलता है। एडवांटेज: तेल से आग तेज़ी से बुझती है, कोई बाहर की फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेंटेनेंस कम होता है। डिसएडवांटेज: तेल की मात्रा अधिक होती है। मध्यम: इसको 11 kV टू 32 kV सब स्टेशन और
इंस्टॉलेशन नेटवर्क में यूज़ किया जाता है, जहाँ तेज और विशिष्ट आर्क बुझाने की ज़रूरत हो। लास्ट टॉपिक हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। दिस सर्किट ब्रेकर एम्प्लॉय हाई प्रेशर एयर ब्लास्ट एज आर्क क्विचिंग मीडियम। द air blast cool the arc and sweep away the arc product to atmosphere, as compressed air is used for arc extension, and these are also called compressed air circuit breaker. Majority of circuit breaker for voltage beyond 110 kV arc of these types, hence these are most suitable for high voltage. Turning the operating the air allowed to enter in the extension chamber, which the pushes away moving contact. The air blast cool the arc and sweep away the arcing product to atmosphere. The repeatedly increase the dielectric strength of the medium between contact. The prevent from releasing the arc. Finally, the flow of current is interrupted. At the bottom there are tank which is cooled air with the value of these 3 holes insulator column. On the top of each insulator column there is double arc extension chamber. The current carrying part are connected in series, as there is large voltage between the conductor and air reserve. Assembly of enter chamber mounted insulator